Now the question is, what are the types of applications? Okay, कौन से types के applications होते हैं? So there are the three types of applications. First one is what? Web application. Okay, so web application means those run on the internet. Okay, what example? Flipkart, Facebook, etc., etc. Okay, web application. So they're having HTML, CSS, JavaScript as a front end, back end, having this business logic, which is written in the business logic, that may be the Java, ASP.NET, okay, or C#.NET, or PHP, okay, which is the business logic, okay, the front end. So these the terms are having here the front end, okay, front end which is written in what? HTML, CSS, JavaScript, okay, or use this framework as a Bootstrap, okay, Bootstrap framework, okay. Then the backend, the next term is come here, what? Backend. What is the backend of your project? So that is known as business logic, which is I have written. So that is what technology. Okay, which technology we have used along with the database. Okay, database may be the MySQL, any database, MySQL, Postgre, okay, Oracle, MongoDB, that is NoSQL, etc. Then we require the technology which we write in the business logic. Okay, so that may be what? PHP, JSP means J2EE. Okay, then Spring Boot also use. Okay, Django, or you can say the Python maybe. And you know the nowadays which is popular most of the time, full stack. Okay, min stack and mun stack, right? Min stack and mun stack. Uh, okay, so PHP, Java, whatever. Okay, so the Java everything is same. PHP, Java, Python. Okay, you can simply term the technology as a Java, and .NET, which .NET is used to develop the web application, to write the business logic, which is ASP.NET and C#.NET. VB and VB.NET किस लिए यूज होते हैं? टू क्रिएट द डेस्कटॉप एप्लीकेशन. ठीक है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट? डेस्कटॉप एप्लीकेशन. So which is what? Executable file. Desktop application, or you can say this is one standalone system. Okay, desktop application, standalone system. और कौन सा word है इसको? Desktop, standalone, and is there any word again? Desktop application, standalone system. Okay, so desktop application means executable file. .exe file will generate and you can install to our single computer. Okay, so whatever you are going to work on that, that is not it's not a client and server architecture. Okay, so वही आपका local machine client server है. Okay, so MS Office हो गया, ऐसे छोटे छोटे paint हो गए, these are the software. So desktop applications, so it will run in a single computer. Okay, we need to install for them. So to develop the desktop application also we can use the Python. Okay, we can use the Java. Okay, then VB.NET. Okay, VB or VB.NET we can use to develop the standalone system. Okay, so these softwares, this desktop software having the some disadvantages. Okay, once the computer get into the virus, okay, into the computer, then the entire data will be deleted. Okay, so you must have to take the periodically backup every day or weekly. Okay, so that is the, and again the most important disadvantage of desktop application is what? Okay, because if you have the owner of the one of the pharmacy, okay, you are the owner and you have the multiple shop.
Suppose you have the one shop in Chandrapur and one shop in Nagpur, and there are the some computers. Okay, so the manager is entering medicines, tablets, okay, जो भी जा रहे आ रहे उसका मेंटेन कर रहे, तो वो इसी कंप्यूटर में रहेगा। और जो नागपुर का है, जो टैबलेट्स जा रहे भेज रहे, जो भी सेल्स हो रहा, जो भी हो रहा, वो इसी कंप्यूटर में स्टोर हो गया। लेकिन जो ओनर है वो इज अनदर सिटी। ओके, ओनर इज द अनदर सिटी। सो अगर आपको ओनर को चेक करना है कि कितना स्टॉक गया, क्या है अवेलेबिलिटी, वहाँ पे चंद्रपुर में जाके चेक करना पड़ेगा उसके कंप्यूटर में, नागपुर में जाके कंप्यूटर से चेक करना पड़ेगा। ओके, सो दिस आर वी कैन से दिस आर द डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। ओके, ये जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में है वो सिर्फ इसी स्टोर के लिए, ये जो सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर में है दिस इज ओनली फॉर दिस स्टोर। ओके, बट ओनर के बहुत सारे स्टोर्स रह सकते हैं, तो हमको ओनर को यहाँ पे जाने की जरूरत ना रहे, इसीलिए हम क्या बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन। ओके, अब देखो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल बन गया। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये क्लाइंट ओनर जो है वो कोई भी प्लेस में क्यों ना रहो, वो अपना ऐप या फिर हमारा मोबाइल वेब एप्लीकेशन ब्राउजर में ओपन करेगा और लॉगिन करेगा एज ए एडमिन, एंड ही कैन चेक देयर कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस शॉप में कितना, स्टोर में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वेब एप्लीकेशन। Okay, this is working through the internet, right? So this is web application, this is the advantages, okay, of the web application. So इस ज़्यादा कुछ वर्क नहीं होता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन मतलब जो मोबाइल पे हम ऐप डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, दैट मे बी द एंड्रॉयड एंड मैक। ओके, राइट। सो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। ओके, सो दैट मे बी द रिक्वायर्ड इंटरनेट और मे नॉट रिक्वायर्ड इंटरनेट। So mobile applications. So what we are going to test here? Web applications. Okay. So web application we are going to test. So web applications. अभी देखो कि HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap. Okay. As a front end, they can use the React.js. Okay. And AngularJS. This technology required for what? Front end designing. And this is back end designing where the business logic is written and that is stored to the database. Okay. So we have to check, we have to check just the front end. Okay, fields proper work करे कि नहीं, functionality checking. Okay, and also we are going to check the database whether the data is stored to the database properly in the field or not. Okay, so this type of all we have to test one, but business logic we are not aware about the business logic. So who is write the business logic? Who's right? That is what, developer. So that may be the PHP developer, Java developer, okay, Python developer, .NET developer, who's write the business logic. So हमको बिजनेस लॉजिक से कोई लेन देन नहीं, हमको फ्लो फंक्शनलिटी प्रॉपर हो रही कि नहीं वो पता होना चाहिए। ओके, एज अ गुड टेस्टर वी हैव, ओके, एज अ गुड टेस्टर वी हैव टू नो द सम क्वालिटीज। ओके, राइट, निगेटिव थिंकिंग रहनी चाहिए, निगेटिव थिंकिंग वर्क करना चाहिए, राइट। So we can check here the some advantages. Okay, why we go for the testing? To get the quality product. What is the testing? Whether the system, to check, ensure that whether the system is working as per the client requirement or not. Okay, as per the requirement or not. What is the need? To give the quality product, user satisfaction, also avoid the user dissatisfaction, also reduce the maintenance cost. Okay, making software is more reliable. What is the advantages? You will get the quality product, client satisfaction, so that we can get more business. Okay, and we will get the bug free software. What are the qualities that require? Never compromise on the qualities. Okay, no compromise on the quality. Today you are going to do for the testing, if you have assigned some test cases, today you log into your system, okay, and you are trying to find doing the testing, trying to executing the test cases, and while executing test case, and if you found any defect, okay, so डिफेक्ट फाउंड हो गया तो हम बोलेंगे जाने दो, मैं 2 घंटे के बाद रिपोर्ट करता हूँ, 4 घंटे के बाद रिपोर्ट करता हूँ, या फिर मैं कल रिपोर्ट करता हूँ डिफेक्ट का या बग का। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। So, जैसे हमको डिफेक्ट मिलता है, एज सुन एज वी हैव टू कम्युनिकेट विद द टीम, टीम के साथ आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है। सो नो
कॉम्प्रोमाइज, ओके। अगर आपको डिफेक्ट मिल भी गया, पता भी चला कि स्पेलिंग मिस्टेक है, ये भी डिफेक्ट है, तो भी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो और उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, दैट इज़ योर मिस्टेक, ओके। सो ये नहीं होना चाहिए। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। छोटी से छोटी चीज़ भी हमको टेस्ट करनी रहती है, ओके, एवरीथिंग, छोटी से छोटी चीज़, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक, लोगो एंड लोगो अलाइनमेंट आल्सो, है ना, प्रॉपर चेक दिख रहा है कि नहीं, नाम बराबर दिख रहा है कि नहीं, ये जो है यहाँ पे टाइटल, ये भी प्रॉपर आ रहा है कि नहीं यहाँ पे, एवरीथिंग यू हैव टू चेक, okay, so do never compromise that one, that is very important. Negative thinking also. So when you are uh, checking username password, so you, what you are going to do, you are entering the valid username and password, okay. So after entering the username and password and click on the submit button, what is should be happen, so that is what analytical thinking, कि यो लॉगिन होने के बाद हमारा होम पेज दिखना चाहिए, तो दिस इज़ योर एनालिटिकल स्किल, ये भी अच्छा होना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग, सो हम सोचते हैं कि चलो हम गलत डेटा या इनवैलिड डेटा इनपुट दे के देखते हैं तो क्या होता है, ओके, ये भी हमको, ये भी क्वालिटी है टेस्ट की। देन एनालिटिकल थिंकिंग, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं कुछ एंटर करूँगा तो उसके बाद एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, अगर मैंने गलत क्रीडेंशियल डाला तो आउटपुट में ये आना चाहिए कि दिस इज़ इनवैलिड, दिस इज़ एनालिटिकल थिंकिंग्स, ओके। एंड ऑल्सो व्हेन वी आर गोइंग टू performing the execution of the test cases in finding the defect anything, okay, so we must have to patience, because patience is very important to understand whether this is a really bug or not, okay. The developer is fixing that bug, when it is developer trying to fix that one, but you are, okay, kitna time lagega, that is dependent, okay. So we must have to patience as a tester, okay. So the communication and written skill is very good, because once we get the defect bug, so you must have to report to the developers, okay. How, then you have to write in the English, है ना, आपको कुछ न इस लिखना पड़ेगा, okay. So you have to communicate by writing skill, okay. You have to communicate with the team members also, तो आपको मेल करना पड़ेगा, right. So what are the good qualities for the tester, right. So that is verbal and written communication is required, okay. So once we get the defect, so you have to log into the Jira software and you have to write what is the type of the defect and the steps you have to write, reproduce the same output, okay. If the screenshot is required, so you can provide a screenshot also, okay. So this is the bug, right. And the passion is more required for the as a good tester, okay. So if you are the good tester, so always passionate with about your job, ठीक है। लेकिन मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप जॉब कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए द पैशन इज़ वेरी रिक्वायर्ड, okay. As a tester, yes, I'm passionate my work. And the technical skill, okay, that is yesterday I also told about the technical skill. So go for one C, okay. So C programming for what? You know, the analytical thinking, okay, how to write the code, okay, how to process the code so that you can understand. And if you know the C++, then you can understand what is the basic OOPS concept, object oriented principle, okay. So that is very important, okay, basic knowledge, technical skill that is required, okay. And the if you are going for the automation testing, that require what, Java or Python, okay, one language from Java or Python, okay. So that is also okay for writing the code in the Selenium, okay. And whatever the additional skill टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, सो जैसे हमको डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, को डेटाबेस में टेस्टिंग करनी है, एपीआई टेस्टिंग करना है, पोस्टमैन का नॉलेज, एपीआई का नॉलेज होना चाहिए, रेस्ट एपीआई और सोप एपीआई, वैसे ऐसे टेक्निकल स्किल हमको ऐड करते जाना पड़ेगा, ओके, जैसे जैसे हमको टेस्ट करना है। तो एनालिटिकल थिंकिंग, जैसे आपको मैंने बताया कि जो भी हम कुछ वर्क करने जा रहे हैं, जिस पे हम मान लीजिए कि अबाउट अस पे क्लिक करने जा रहे हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए कि अबाउट अस का पेज ओपन होना चाहिए, ये हमारी थिंकिंग होती है ना। ऐसा एनालिटिकल थिंक, जो भी हम करने जा रहे हैं उसका आगे होने वाला क्या है, दैट इज एनालिटिकल थिंकिंग। सो हमके एनालिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी रहनी चाहिए, ओके। सो इट विल रिक्वायर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी मीन्स दैट वी आर जस्ट सेविंग द टाइम, ओके। Okay, so the company
Okay, so each and every day they will ask, company providing the salary to you for the each day. So daily you have to give the report, work करना है और उनको daily day report submit करनी पड़ती है. Okay, so that is productive because company में जो time दिया है उस time पे हमको complete करवा के देना है. That is our responsibility. So the testing. Okay, so ensuring that the whether the application is working as per the client requirement or not. This is what process of verification, whether the project will be acceptable at the end user or not. This is known as a testing, and there are the two types of testing. Okay, two types. What are the that two types? So कौन से टाइप है टेस्टिंग के? दो टाइप्स है और वो इंटरव्यू में आपको पूछे जाएंगे. यस, कौन से है? White box and black box. Okay, so the white box testing is known as structural testing. Okay, black box testing is known as functional testing. Okay, these two very important terms. Structural, why it is called a structural? Because this is the logic is written. Okay, structural means programming language that is in the structure form. Okay, so open curly bracket, curly braces or close curly braces, then we required a variable something something code, है ना? So that is structure, and this is also known as white box testing. Okay, functional testing is black box testing. Okay, now we are going to see what is exactly white box testing. Okay, in the diagram you can check the test case. Okay, test case is nothing but the input and the application code is written. Okay, this is what code, and we are checking the code, only code. मैंने जो कोड लिखा वो बराबर है कि नहीं वो चेक करना, उसको बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. तो जनरली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर. Okay, developers do the white box testing. Okay, before sending the QA team. Okay, QA team. तो ये भी टर्म याद रखने का, डेव टीम, डेव. ओके, डेव टीम मीन्स डेवलपर टीम, क्यूए टीम मीन्स टेस्टर टीम, quality assurance quality analyst. Okay, so the testing is based on the knowledge of the internal logic of an application code, also known as the glass box testing. Okay, so ऐसे अभी वर्ड्स बहुत आते रहेंगे तो आपको फैमिलियर होना है ये वर्ड्स के साथ. वाइट बॉक्स को हो. ओके, सो वाइट बॉक्स को हो या फिर ग्लास बॉक्स को हो या फिर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को हो, all are the same. So who do the white box testing? Those who know the internal logic of an application code based on based on knowledge of the internal logic. Okay, application code, that is also known as glass box testing. Glass box testing. Okay, so this is what application code is written. एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है मुझे, उसके लिए मुझे कोड लिखना है. ओके, एक ऐसा ऐसा कोड लिख दिया मैंने और उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने जो कोड लिखा हो सब बराबर है क्या. तो ये जो मैं चेक कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन, उसको बोलेंगे हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. ओके, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग. ओके, so this is code. Okay, so I have written here the code. I am checking that one whether this code is written properly or not. So before sending, okay, so I am checking where before executing I am going to check the code. जैसे मैं कोड लिखा हूँ executing के पहले इसको मैं चेक करूँगा. ओके, सो इसको बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. और इसमें जो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है ना वो बराबर है क्या, स्ट्रक्चर बराबर है क्या, वो चेक करूँगा. So this is also the code I have written for one page. Okay, also I am going to check before the sending to the QA team or executing to the team. Okay,
I'm checking this one or the structure are properly or not. Okay, so this is who those who know the internal logic of the code, जिसको internal logic पता है उसको बोलते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो इसको इसका टेंशन नहीं लेने का, हमको नहीं करना पड़ता है। ओके, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो इंटरनल सॉफ्टवेयर एंड कोड वर्किंग शुड बी नोन फॉर दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग। सो इंटरनल लॉजिक पता होना चाहिए कि हम लॉजिक कैसे लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ओके, सो द टेस्ट बेस्ड ऑन द कवरेज ऑफ द कोड स्टेटमेंट एंड ब्रांचेस पाथ एंड कंडीशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। सो जो कोड ऑफ स्टेटमेंट है, ब्रांचेस है, पाथ कैसे फ्लो हो रहा है और बेस्ड ऑन द कंडीशंस। ओके, जैसे कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके जैसे अभी द पर्सन दोज एज इज 18 और मोर देन 18 but लेस देन 100, देन ही इज एलिजिबल फॉर टू डू द वोट। ओके, सो फिर हम उसमें कैसे कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। इफ ओके दिस स्मॉल लॉजिक रिक्वायर्ड। ओके, इफ द एज इज ग्रेटर देन or equal to, okay, something with the value we are providing, right? So this statement, okay, if this statement is true then go for the next block। okay, next block। तो यहाँ पे कैसा ये स्ट्रक्चर हो गया, और ये जो सारा कोड है, इफ यू नो द वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस और जावा, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक, okay, so that you can understand this code। okay, if you don't have this knowledge, that is also okay, no problem, but you have to learn that one। तो ये आगे आगे आपको ज़रूरत गिरेंगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और आपको थोड़ा एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। उसमें बिजनेस लॉजिक क्या लिखा उसका हमको नॉलेज नहीं रहा तो भी चलता, लेकिन एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कैसे हुई है इसका थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, जैसे ये एक वेब एप्लीकेशन है, फ्रीलांसर या समथिंग। ओके, दिस वेब एप्लीकेशंस आर लाइक आई एम टेकिंग हियर फेसबुक। ओके, फेसबुक रजिस्ट्रेशन, एंड यू कैन चेक हियर दिस इज नोन एज अ टेक्स्ट फील्ड। ओके, इसको टेक्स्ट फील्ड कहते हैं। ओके, इसको रेडियो बटन्स कहते हैं, इसको बटन कहते हैं, ये दिस इज द लिंक। तो ये बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है आपको। ओके, सो HTML, सो हाउ इट इज़ डिज़ाइन बाय HTML। जितने भी 99% वेबसाइट्स है इंटरनेट पे, वो सारे उनका जो फ्रंट एंड है वो HTML CSS से डिज़ाइन हुआ है। ओके, यू कैन चेक हियर HTML CSS। okay, this is HTML page, this is a front end code you can see, but we can't see the business logic। जैसे ये है, इसमें लिखने के बाद जो मतलब फिलअप करने के बाद जो हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, जो डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर होता है, सर्वर में जाता है। इसका जो कोड लिखा है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, नो वन गिव दैट वन। ओके, यहाँ पे जो ये कोड दिख रहा है ये सिर्फ फ्रंट एंड का कोड है, मतलब इसको हम बोलेंगे फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट एंड जो क्लाइंट को दिखता है यूजर्स को, दिस इज अ फ्रंट एंड। बैक एंड में जो वर्क हो रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि बैक एंड में हम बिजनेस लॉजिक लिखा है ना। जैसे यहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन फील्ड दिख रही है, इसमें हम प्रोसेस करेंगे, कुछ डेटा इनपुट डालेंगे, फिर इसमें सबमिट पे क्लिक करेंगे साइन अप पे, तो जो डेटा फ्लो है वो चला जाएगा सर्वर पे, वैलिडेट होगा डेटा, उसके बाद यूज़र नेम आईडी प्रोवाइड हो जाएंगी। ओके, जो ये जो प्रोसेस हो रही है डेटा डेटाबेस में जा रहा है उसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। ओके, जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है वो सर्वर साइड में लिखी जाती है, तो उससे हमको कुछ ये नहीं है। ओके, सो वो डेवलपर लिखता है। हमको ये जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में जो ये फील्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको इसको फंक्शनल चेकिंग करना है। अब इसमें कैसा स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना है, ये प्रॉपर है क्या एज पर द रिक्वायरमेंट, इसकी फील्ड की साइज, जैसे ये फील्ड इतनी दिख रही है और ये फील्ड बड़ी दिख रही है, दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा, तो उसको बोलते हैं UI टेस्टिंग, GUI टेस्टिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। ओके, देन यूजेबिलिटी टेस्टिंग करनी है हमको, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम पे समथिंग लिखा और टैब प्रेस करने के बाद दूसरे फील्ड पे ऑटोमेटिकली जाना चाहिए, जैसे टैप 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 प्रॉपरली जाना चाहिए लिंक लिंक पे। ओके, ये देखिए सब। सो दिस इज यूजेबिलिटी टेस्टिंग, यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, है ना, यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं वो चेक करना। तो ये फ्रंट एंड का तो हमको एज अ टेस्टर टेस्टिंग तो कर रहे हैं हम, बट हमको एटलीस्ट थोड़ा सा ये नॉलेज होना कि ये बना कैसे है, ये जो फॉर्म है वो डिज़ाइन कैसे हुआ है। ओके,
इसमें जो फील्ड्स यूज किए, तो ये बेसिक टेक्नोलॉजी है वेब एप्लीकेशन। जब भी हमको वेब एप्लीकेशन टेस्ट करना है तो फ्रंट एंड हमेशा HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस एंगुलर जेएस से बना है। विदाउट HTML नॉट पॉसिबल। ओके, HTML बेसिक लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये HTML में ये फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हम CSS पढ़ते हैं, CSS में हम कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, ये थोड़ा आपको नॉलेज लेना है। ठीक है, तो मेरे एक वीडियोस अवेलेबल है इन वेब डिज़ाइनिंग, इंटर्नशिप प्रोवाइड वेब डिज़ाइनिंग, आप वो देख सकते हो। ओके, 3-4 वीडियो स्टार्टिंग की जो पब्लिक है वो देख सकते हो, और उसके बाद आपको अगर अच्छे लगे तो परचेस करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे वर्क करना है उसमें। ठीक है, अगर आपका ये नॉलेज अगर स्ट्रांग होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें अगर कुछ लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी तो आपको वो वीडियो देखने पड़ेंगे HTML के। जैसे जैसे लगता है नॉलेज कम लग रहा है हमको यहाँ पे, तो हमको इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट, इसको टेक्स्ट फिल बोलते हैं, ये जो फर्स्ट नेम लिखा है इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं, ये सब हमको टेस्ट करना है। ओके, वेब एप्लीकेशंस। सो जो फ्लो जा रहा है, बिजनेस लॉजिक जो लिखा है वो है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो डेवलपर वो चेक करेगा। ठीक है, बिजनेस उसमें जो कोड आया है, कोड स्टेटमेंट्स आए हैं, ब्रांचेस हुए हैं, ओके, पाथ फ्लो हो रहा है, और सम कंडीशंस भी आ रहे हैं। बेस्ड ऑन द कंडीशन इट विल वर्क। ओके, so that is what white box testing, and this is known as what unit testing, component testing. Okay, so these are the testing are belongs to the white box testing. Then what is mean by the unit testing? Who do the unit testing? Developer do the unit testing. Okay, what is mean by the unit testing? और इसी को बोलते हैं component testing. These are the testing belongs to the white box testing. So white box testing done by the developers, you already know. Unit testing is also done by the developer, okay, because this is the part of white box testing. So unit testing जो है वो developer कब करते हैं? ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। ओके, ये कोड लिखा है यहाँ पे, और कोड लिखने के बाद मैंने अभी वाइट बॉक्स टेस्टिंग की है, और अभी मैं यूनिट टेस्टिंग करता हूँ। तो यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है कि बिफोर सेंडिंग द कोड टू द QA, टेस्टर को भेजने के पहले आप एक टाइम उसको एग्जीक्यूट करके देखो, ओनली वंस। ओके, ओनली वंस। सो ये सेंड करने के पहले एक बार उसको रन करके देखो। ओके, वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, दिस कोड इज वर्किंग और नॉट, दिस इज नोन एज यूनिट टेस्टिंग बिफोर सेंडिंग टू द QA टीम। टेस्टर को सेंड करने के पहले मेरा कोड एग्जीक्यूट करना है एट ए वन टाइम। ओके, एटलीस्ट वन। ओके, एक बार, कम से कम एक बार वो कोड मुझे एग्जीक्यूट करके चेक करना है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वेदर आवर कोड इज वर्किंग और नॉट। ओके, दिस इज नोन एज यूनिट टेस्टिंग। ओके, अब मैं इस पर वर्क करना रन कर दिया, और मैं चेक कर रहा हूँ कि वर्क हो रहा है कि नहीं। ओके, इट विल टेक द सम टाइम। So if I am getting the output, then I can say this is working. But टेस्टर को क्या करना पड़ेगा, वो जो फंक्शनैलिटी है उसकी, वो हमको चेक करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी वर्क हो रही कि नहीं। डेवलपर सिर्फ हमारा मैंने जो कोड लिखा वो वर्क कर रहा है कि नहीं वो चेक करेगा। दैट इज यूनिट टेस्टिंग। बिफोर सेंडिंग टू द QA टीम, इट विल एग्जीक्यूट वन टाइम, एक आधे टाइम पे वो एग्जीक्यूट करके देखेंगे कोड को, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया और मैंने देखा यहाँ पे लॉन्च हो गया, मेरा कोड वर्क कर रहा है। ओके, जो फिर वो जो टेस्टर है वो फंक्शनल टेस्टिंग करेगा उसमें। ओके, और उसमें अगर अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट वो वर्क नहीं मिला, तो फिर वो रिपोर्ट करेगा डिफेक्ट की, या फिर बग। ओके, वी कैन से द बग। ओके, सो यूनिट टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु विल डू द यूनिट टेस्टिंग? डेवलपर। कौन करेगा? डेवलपर। ओके, व्हेन इट विल डू द यूनिट टेस्टिंग, once he write the code, and before sending to the QA team, it will he will try to execute at once time. Okay, at least one time, at least one time he want to check, okay, whether the code is working properly or not. जब भी डेवलपर कोड लिखता है तो उसको एग्जीक्यूट करके देखता है, और वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं, इसी को हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। ओके, so this is also known as component testing. Okay, so also it is known as clear box testing.
ठीक है, वर्ड्स अभी बढ़ेंगे धीरे धीरे. ओके, यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, दिस बिलोंग्स टू द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. White box testing is also known as clear box testing, open box testing, okay, glass box testing, transparent box testing, code based testing, or structural testing. That is already we know. Okay, so white box testing को क्या कहा जाता है? Clear box testing. Okay, unit testing or component testing. These are the part of white box testing. Okay, unit testing and component testing are the part of the which is belongs to the white box testing. Okay, then white box testing is also called as what? Clear box testing, open box testing, glass box testing, transparent box testing. Okay, and code based testing or structural based testing. Okay, structural testing. So maintain in your notes everything. Okay, and daily आपको पढ़ते रहना है वर्ड्स को. जब हम डेली पढ़ते रहेंगे वर्ड्स को तो हमारे माइंड में फिक्स हो जाएंगे. ओके, so it's a software testing methods in which the internal logic we are going to check. Okay, internal logic or structure, design, implementation. Okay, this all type of we are going to test. Okay, is known as the tester. Okay, so that is known to the tester. जो भी वो टेस्ट कर रहा है उनको पता रहेगा इंटरनल लॉजिक, इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, लॉजिक कैसे लिख रहे हैं, ये सब उनको पता रहेगा उस टेस्टर को. ओके, दिस इज व्हाट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. एंड व्हाइट बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? अभी टेस्टर को व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करना है तो व्हाट आर द टेक्निक्स दे आर गोइंग टू यूज? दैट इज अ कंट्रोल फ्लो ऑफ टेस्टिंग. ओके, हाउ द फ्लो इज गोइंग, फ्लो कैसे चल रहा है. से एक मार्कशीट जनरेशन का कोड है तो एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, एंटर द मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे जा रहा, फिर उसमें एडिशन हो रही, एवरेज निकल रहा, देन रिजल्ट आ रहा पास और फेल. अगर एक आधे सब्जेक्ट में स्टूडेंट बिलो 35 है तो फेल होना चाहिए, तो बाकी सब सब्जेक्ट में पास है तो फेल होना चाहिए रिजल्ट. ओके, बिलो 35 है तो बराबर है, तो उसमें क्या ब्रांचिंग हो गई हमारी, है ना, कंट्रोल फ्लो लग गया हमारा, स्विच के स्टेटमेंट और एनी अदर स्टेटमेंट, ई फेल्स वॉट एवर. तो ये बेसिक है ई फेल स्टेटमेंट्स वगैरह. Okay, so if you know the C language, then you can understand that one. So control flow testing, data flow testing, branching testing, path testing, statement coverage, and decision coverage. If else, okay, does it decision statement कैसे चल रहे? This all these techniques include in the white box. Okay, and who will responsible for doing this all types of testing? Only developer. ठीक है, ये सब कौन करेगा? डेवलपर करेगा, हम नहीं करेंगे, टेस्टर नहीं करेंगे. ओके, ओनली डेवलपर विल डू कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो, ब्रांच टेस्टिंग. ओके, ओनली डू द डेवलपर. ओके, मैं मान लीजिए कि मैं डेवलपर हूँ, मैं चेक करो कि फ्लो बराबर जा रहा है कि नहीं. ओके, यहाँ से फ्लो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ. कंडीशन फॉल्स हो रही तो क्या होगा? ओके, यहाँ पे लिंक है, इस पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे admin.jsp नाम का जो पेज है उसमें जाना चाहिए. कंडीशनल बेस होंगे तो कंडीशनल बेस, if dollar document.ready function, then it will be execute, otherwise not. Okay, open if none. So that is dependent. Okay, if these keywords I am using dependent. Okay, so flow ये सब डेवलपर के हिसाब से कि वो बराबर उस फ्लो पे जा रहा है कि नहीं, उस पे जा रहा है कि नहीं. बिफोर दैट विल डन बिफोर सेंडिंग द क्यूए टीम. और वाइट बॉक्स टेस्टिंग कब करते हैं? क्यूए टीम पे जाने के पहले डेवलपर ने कोड लिखा, डेवलपर कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, चेक कर रहा है सब कुछ मैंने बराबर लिखा है कि नहीं और हमारा आउटपुट मिल रहा है कि नहीं. ठीक है, उसके बाद जो फंक्शनल टेस्टिंग है वो क्यूए टीम करेंगे, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ओके, so what are the levels are applicable to the white box testing? Unit testing and component testing, these are the part of white box testing. So unit testing, definitely 100% the question will be asked in the interview. 100%. What is unit testing? Okay, भले ये डेवलपर है लेकिन आपको जज करने के लिए व्हाट आर द नॉलेज वी हैव, मैनुअल टेस्टिंग का नॉलेज आपको कितना है, ये चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछेंगे. ओके, व्हाट इज द यूनिट टेस्टिंग?
So for testing path within a unit, okay, so this is for what, testing the path within the unit. So means one unit के अंदर, so whether sending the developer write the code and he will execute the code and it, it will execute for the one time, okay, so to check whether the code is working or not, okay, so before sending to the QA team, so एक ही बार जैसे डेवलपर ने कोड लिखा और उसको एग्जीक्यूट करके देख रहा है कि कोड वर्क कर रहा है कि नहीं, सो इसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग. So for testing the path within the unit, okay, that within the unit integration testing level जो है for testing the path between the units, okay. अब मान लीजिए कि यूनिट टेस्टिंग जो पार्ट है, ओके, आई एम डूइंग द यूनिट टेस्टिंग, दिस इज रजिस्ट्रेशन पाथ, एक यूनिट, ओके, सो जैसे लिंक कर रहे हैं हम, ओके, यू कैन टेक दिस वन, दिस इज वन यूनिट, ओके, stock category is one unit, okay, and when you click on here, so we are getting the two unit, okay, one two, I am clicking here outstanding, so purchase outstanding, that is integration, okay, whether the all these modules are integrated properly or not, that is known as the integration testing. पूरे यहाँ पे क्लिक होने के बाद उधर जाना चाहिए, यहाँ से क्लिक होने के बाद फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, एक मॉड्यूल से दूसरा मॉड्यूल इंटरकनेक्टेड है क्या प्रॉपरली, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ओके. यूनिट टेस्टिंग हम विद इन द यूनिट करते हैं, विद इन द यूनिट, विद इन द यूनिट, ओके, ये यूनिट आ गया, हम इसी के अंदर यूनिट टेस्टिंग, ओके, कौन करता है, डेवलपर करता है विद इन द यूनिट यूनिट. मतलब मॉड्यूल, यूनिट मतलब मॉड्यूल, ओनली वन मॉड्यूल, मतलब ये एक फ्लो है. ये हम जैसे आपको ये है इसका कोड करना है तो इसमें वो कोड कर रहा है और चेक कर रहा है मॉड्यूल टू मॉड्यूल, छोटा सा, ओके, ये वर्क कर रहा है तो फिर आगे के मॉड्यूल इंटीग्रेट करेगा, उसके बाद आगे कोड करेगा, ओके. सो दिस इज यूनिट, यू कैन से दैट इज अ मॉड्यूल आल्सो. जैसे मान लो कि लॉगिन का है, लॉगिन के अंदर बहुत सारे फील्ड्स है, तो एक ही फील्ड को चेक करना, ओके, दैट इज यूनिट. देन इंटीग्रेशन मतलब कि दोनों का पाथ कैसा है, इंटीग्रेट करना दोनों यूनिट में. जैसे अभी मैंने बोला कि एक यूनिट है कि रजिस्ट्रेशन लॉगिन का है तो एक ही टेक्स्ट फील्ड है, तो आउटपुट में मुझे टेक्स्ट फील्ड विजिबल होनी चाहिए, फिर इसको मैंने वैलिडेशन लगाया, डेवलपर ने वैलिडेशन क्या लगाया कि ओनली अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, या फिर हम बोलेंगे कि ओनली अल्फाबेटिकल वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, नो न्यूमेरिक वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, तो उसमें क्या लगाया, कंडीशन लगाया डेवलपर ने, ठीक है ना, वो हो गया यूनिट. और एक कंडीशन लगाने के बाद उसको टेस्ट किया तो बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग. देन उसके बाद यहाँ पे फील्ड जाने के बाद उन्होंने कुछ बटन्स ऐड किया, ओके, सो यहाँ से वहाँ तक डेटा फ्लो हुआ कि नहीं प्रॉपरली, दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन टेस्टिंग. द बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट कि जब भी हम ये देखते हैं ऑल दिस मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड प्रॉपरली और नॉट. सो जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो इसके जो मॉड्यूल्स है ये देखो ऐसे पॉपअप हो रहे हैं, बॉटम अप और टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप, ओके, फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, बॉटम टू अप, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप. सो ऑल दिस मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड प्रॉपरली और नॉट. सो वन मॉड्यूल डिपेंड है कि उसके ऊपर, यहाँ पे क्लिक किए, ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक किया तो दो मॉड्यूल के बीच में कनेक्शन होना है, बिकॉज दीज आर द डिपेंडिंग ऑन द विथ ऑन ईच अदर. सो द दिस इज नोन एज द इंटीग्रेशन मॉड्यूल. तो उसमें इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन एंड नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशंस, ओके, सो इंटीग्रेट होना चाहिए प्रॉपरली इसके बेस में. जैसे यहाँ पे सेल्स मैंने कुछ कर दिया तो रिपोर्ट में जनरेट होना चाहिए वो सेल्स, कि वो वहाँ से वो आया है ना, इंटरकनेक्शन होना चाहिए, सेल्स किया कुछ किया तो रिपोर्ट जनरेशन में वो आने चाहिए, सेल्स कितना हुआ तो एक में के साथ वो इंटरकनेक्ट होना चाहिए, ओके, इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग आल्सो डन बाय द डेवलपर. This is the basic level of the testing. Okay, integration testing for the testing the path between the two units. Then system testing. So for the testing the path between the subsystems also. अब system मतलब क्या कि that is end to end testing. तो system testing में कंप्यूटर, प्लेटफॉर्म, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये सारे बातें आती है, ओके, सिस्टम टेस्टिंग. सो
प्लेटफॉर्म मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मेरा कोड इस वर्क कर रहा है प्लेटफॉर्म पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चेक वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द टेक्निक्स लेवल्स आर इंपॉर्टेंट इन द वाइट बॉक्स टेस्टिंग। कभी कोई ब्राउजर पे वर्क करता है, दूसरे ब्राउजर पे नहीं करता है ना। पोर्टेबिलिटी, कंपेटिबिलिटी, सो सिक्योरिटी टेस्टिंग, कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग, दीज आर comes under the system testing. Okay, ये हम देखेंगे, डोंट वरी। बट these are the first phase of the testing is unit testing, okay, integration testing and system testing। इसमें से कुछ वर्क हम डेवलप टेस्टर भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टर भी वर्क करता है ना। ऑटोमेशन टेस्टर भी कोड लिखता है, वो भी चेक करता है, बट वो भी यूनिट टेस्टिंग कर सकता है ना। कोड लिखने के पहले एग्जीक्यूट करके चेक करता है, कोड लिखने के बाद एग्जीक्यूशन करके चेक करते हैं कि मैंने जो कोड लिखा वो सही है कि नहीं। ओके, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ओके, then integration, so what or these paths are integrated properly or not, which is interconnected properly or not, for testing the path between the subsystem। एक सिस्टम है दूसरी सिस्टम, सिस्टम मीन्स दैट कम्स अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम, machines, then platform independent, okay, platform is operating system, security system, everything, okay. So this all comes under will do the developers, okay. So developer also check this one, and this integration system also टेस्टर आल्सो वर्क ऑन दैट। ओके, ये भी कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, वो कैसे आएंगे उस पर, वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। हाउएवर इट इज मेनली अप्लाइड टू द यूनिट टेस्टिंग। सो unit testing, integration testing, system testing, it is fundamental, okay. Or you can say this is the category 1, okay, this is category 1, this is one category, and category 2 that comes under the functional and non-functional testing, functional testing and non-functional testing। so ये जो टेस्टिंग हुआ आई है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग, okay, so we can say this is what category 1। so level of testing, category 1, so level of testing we'll see, okay, don't worry, we'll see the latter also। this is level of testing, fundamental में से ये पहले टेस्टिंग करना जरूरी है, ओके। so this is the testing which is done by the developers, okay, unit testing, integration testing, system testing, ओके। सिस्टम वर्क कर रही है कि नहीं प्रॉपरली, पाथ फ्लो हो रहा है कि नहीं सब सिस्टम में, क्लाइंट और आर्किटेक्ट, क्लाइंट और सर्वर के बेस के टाइम पे अवेलेबल है वैसे टाइम पे, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल, ओके। सो दिस इज द टेस्टिंग फंडामेंटल्स दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी 1। लेवल ऑफ टेस्टिंग में कैटेगरी 1 में आते हैं, और कैटेगरी 2 में आते हैं फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, okay। functional testing, so who will do who will performs, okay, testers also some category will perform here, okay। इसमें से कुछ कैटेगरी हम टेस्टर भी परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ओके। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे। सो जनरली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग विल डू द टेस्टर, ओके। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग को ही कहते हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, ओके। और यूनिट टेस्टिंग, component testing, these are a part of the white box testing। so generally developer is responsible for doing the white box testing, ठीक है। कोड जिनको इंटरनल लॉजिक कोड पता है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग मतलब जिन्होंने डेवलपर ने कोड लिखा वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, उसका आउटपुट वर्क करता है कि नहीं प्रॉपर, तो उसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। अब इनकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी स्लोली स्लोली चेंज होती जाएंगी जब हम आगे आगे सिलेबस बढ़ेगा हमारा, ओके। सो जैसे हम एक्चुअल वर्क करना चालू करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। अभी जस्ट हमको अंडरस्टैंड ये करना है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये करते हैं, उसमें ये टाइप्स आते हैं, ओके। क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। कभी कभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज ओपन बॉक्स टेस्टिंग, कुछ भी वर्ड्स पूछते हैं वो, इसीलिए ये हमको पता होना चाहिए। ये जो वर्ड्स है वो टर्मिनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द लेवल्स विच कम्स अंडर द वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ओके।
ये जो लेवल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द लेवल्स आर कम्स अंडर द वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो हमको आपको कुछ बताते आना चाहिए कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग, दीज आर द लेवल्स। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग, वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, ये मैं हमारा ये जो पार्ट है वो आने वाला है। ओके, ये बेसिक फंडामेंटल्स है, जस्ट द फंडामेंटल्स। ओके, सो एज ए फ्रेशर को छोटे छोटे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये अभी आप डेफिनेशन बताएंगे। लेकिन हमारा जैसा सिलेबस आगे बढ़ेगा, जैसे हम वर्क करेंगे, प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, तो आपका डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्यों जब भी हम इंटरव्यू को आंसर देते हैं तो हमको डेफिनेशन में नहीं देना है। डेफिनेशन तो ऐसे थोड़ा बताना है कि ये है, और उसके साथ हमारा एग्जाम्पल भी देना है। Okay, so what is unit testing? So unit testing is nothing but the which is done by the developer, and developer writes the code, and before sending the QA, it will he will he or she will execute at once time to check whether the code is working properly or not. ओके, सो ऐसे एग्जाम्पल प्लस डेफिनेशन ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सब आ जाएगा, डोंट वरी, धीरे धीरे हम वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ओके, सो अभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग पे हम इलेबोरेट करेंगे, जो टेस्टिंग के फंडामेंटल्स में आएंगे। ओके, एंड क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। Okay, who do the white box testing? Only developer, those who know the internal logic of code. Okay, ठीक है। So what is testing? Whether the system is working as per the requirement or not, we are checking. This is known as the testing. Okay, so any doubt? If you want to ask any question, so you can ask me. So ये थोड़ा HTML CSS जावास्क्रिप्ट का नॉलेज रहा तो अच्छा रहेगा। HTML CSS, ओके, हमको जो एप्लीकेशन टेस्ट कर रही है करना है वो बनी कैसे उतना नॉलेज होना चाहिए। वो बनने समय क्या क्या लॉजिक यूज़ किए, उसमें अंदर कोड क्या किया, उससे हमको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। बट एक्चुअली ये टेक्स्ट फील्ड कैसी आई है यहाँ पे, ये बटन कैसे क्रिएट हुआ है, ये थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग मतलब कुछ एंटर किए तो यहाँ पे क्लिक होने के बाद पे वो कहाँ पे होम पेज पे जाएगा, कहाँ जाएगा, है ना। सो रॉन्ग इनपुट डाले तो क्या आना चाहिए, हमारी एक थिंकिंग होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है। जितने टेक्नोलॉजी है, एच टी एम एल सी एस एस, वो बेसिक है फॉर द ऑटोमेशन के लिए। कोडिंग लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, और इतना हाई फाई कोडिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और बेसिक राइटिंग द कोड ये आना चाहिए। बेसिक डेटाबेस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ओके, डेटाबेस में फ्लो कैसे होता है, इंसर्ट कैसे होता है, तो ये धीरे धीरे सब गेन करना पड़ेगा नॉलेज। तो सबसे ज़्यादा जिसके पास स्किल सेट रहेगा तो उनको हायर करेंगे सबसे पहले। तो इंटरव्यू में यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा स्किल सेट उनको प्रायोरिटी पहले। तो एडिशनल एक दिन में थोड़ा एडिशनल ऐसे पढ़ते रहना ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम वेब एप्लीकेशन ही टेस्ट कर रहे हैं, तो हमको वेब एप्लीकेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। फ्रंट एंड में हमेशा HTML से जावास्क्रिप्ट और एनी एंगुलर और रिएक्ट जेएस यूज़ होता है, और बैक एंड में कोई भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग विद डेटाबेस यूज़ होता है। और वास्ट HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने वेब डिज़ाइनिंग इंटेंसिव ऑन द वेब डिज़ाइनिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, कनेक्ट्स ऑफ इन्फोटेक पे। आप उसमें 3-4 वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट इज़ HTML, व्हाट इज़ CSS एंड व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। और थोड़ा उसको और अच्छे से पढ़ना था, फ्रीली पढ़ सकते हो। ओके।